Hello students. So ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ applications of dimensional equations. So पूरा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ attentive ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਆ। चार यूजेस ने अपने को चार तरह ਦੀਆਂ numerical problems ਇੱਥੇ based ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਥਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਚਾਰ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ UGC ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BSc MSc ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ IAS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਨੀਟ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ IIT ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਏਮਸ ਦਾ PMT ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸਡ ਆ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਚੋਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਚਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल S = ut + ½ at स्क्वायर ਜਾਂ V = u + at ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ V² - u² = 2as। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ SI 'ਚ ਉਹਨੂੰ CGS 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ CGS 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਨ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟ ਟੂ ਡਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਚੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, the dimensions of the fundamental quantities on two sides of the physical relation, dimensions of the fundamental quantities on the two sides of physical relation must be same. This principle is based upon the fact that physical quantities of same kind can be added, subtracted or compared. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ, ਜੇ m ਦੀ ਇੱਧਰ 1 ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ m l ਤੇ t ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ, ठीक है। तो जे प्लस वाला साइन भी है तो वो टर्म्स भी सेम डायमेंशंस दियां होंगियां, ठीक है। सो
आ लिखी हुई है लाइन, सो मास कैन बी एडिड टू मास नॉट लेंथ, ठीक है, मास नूं मास च ऐड किया जा सकदा। हुण इहनूं मैथमेटिकली लिखिआ m दी पावर a, l दी पावर b, t दी पावर c, ठीक है, इज इक्वल टू m दी पावर x, l रेज टू y, t रेज टू z। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, अकॉर्डिंग टू दिस होमोजेनिटी प्रिंसीपल a क्योंकि डायमेंशनस सेम होणगियां, सो m a दी वैल्यू जिहड़ी है x दे बराबर होगी, b दी वैल्यू y दे बराबर होगी, तो c दी वैल्यू z दे बराबर होगी, ठीक है। सो बाय प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी आ लिखिया पिया, ठीक है। सो इस चीज़ नूं चंगी तरह तुसी अंडरस्टैंड कर लेना। नैक्सट हुण मैं तुहानूं कहा सी भी न्यूमेरिकल्स ने, सो इन्हां दे बेस ते कुछ न्यूमेरिकल्स आपां सॉल्व करने। टू चैक दी एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन, मैं तुहानूं कहा सी कोई फार्मूला दिता होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही मैं लिख लिया, ठीक है। हुण मैं की करना है इहदे च, मैं इन्हां दियां डायमेंशनस लिख लूँगा, एस दियां डायमेंशनस लिख लूँगा, यूटी दियां लिख लूँगा, तो इन्हां दियां यू दी लिख के टी दी लिख के दोनों नूं कंबाइन कर दूँगा। प्लस का साइन है ना, सो प्लस वाले का आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन वाले आप कंबाइन कर लेने ने। यू टी की डायमेंशन लिख ली, ये डायमेंशन लिख ली। हुण होमोजेनिटी प्रिंसीपल की कहता कि आ एस की डायमेंशन, यू टी की डायमेंशन ते आ प्लस तो बाद जी दूजी टर्म है, इन्हां तिन्नां दी इच बेसिकली 3 टर्म्स ने, एक टर्म इस पासे लैफ्ट हैंड साइड ते, 2 टर्मां राइट हैंड साइड ते ने। इन्हां दियां डायमेंशनस सेम होनियां चाहिदियां, यू टी दी ते हाफ at स्क्वायर दी। सो आपां यही काम करना, आप पढ़ लियो नाल की लिखिया, वी विल चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। सो फर्स्ट वी विल राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म। मैं क्या सी भी सीधा आप फार्मूला लिखांगे डायमेंशन। सो एस अपने कोल की हुंदा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड, यू इनिशियल वेलोसिटी हुंदी है, टी टाइम हुंदा है, ए एक्सेलरेशन हुंदी है, हाफ अपने कोल कांस्टेंट है, ये नंबर है, इहदी कोई डायमेंशन नहीं हुंदी, ठीक है। आ टी दी पावर 2 दित्ती हुई है। सो इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा, सो फर्स्ट वी विल राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म, एस इज डिस्टेंस। सो एस जिहड़ा आ उनकी डायमेंशन की आ जाऊगी, मैं तुहानूं की कहा सी कल्ला एस नहीं लिख सकते, स्क्वायर ब्रैकेट च लिखना है। इट मीनस डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दे विच एल, ठीक है। वट इट मीनस एल दी पावर 1, L raised to power 1. It means m0 L1 T0 लिख ही सकते हैं आप ये लिख सकते हैं मास दी कोई डायमेंशन नहीं हैगी, टी दी कोई नहीं हैगी, सो आप उन्हां दी पावर 0 पाती, जो कोई डायमेंशन नहीं हैगी पावर 0 पा दो। मैं दसदा है क्यों लिखी है पावर, आप एल लिख के भी सार सकते सी, बट ये तां लिखिया क्योंकि अगे आप इक्वेशन इक्वेट करांगे, सो सारे पासे वधिया लगदा जे इकट्ठा लिखिया होवे, समझण च सौखा हो जाता है। U इज वेलोसिटी, T इज टाइम। वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी है, बट मैं सीधी वेलोसिटी लिख लिया, कोई मैटर नहीं करता इतने है ना, क्योंकि आप अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं। सो यू टी, यू की है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला की होंदा है m0 L T -1, ठीक है। सो मैं की करता वेलोसिटी का लिखता m0 L T -1, L की पावर 1 पानी है, पा लो, नहीं पानी ना पाओ, कोई मतलब उनका कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। T की पावर 1, टाइम कला टाइम 1 है ना पावर, सो अपने कोल हुण इहनूं कंबाइन करो, m0 रह गया, l इत्थे हैगा नहीं हैगा, कला l रह गया, आ वाला t -1 ते 1 कैंसल हो गए ना, पावर्स जुड़ जांदियां हुंदियां मल्टीप्लाई करन वेले, t -1 + 1 -1 + 1 कट्टे गए 0 हो गया। सो अपने कोल ut दी डायमेंशन की आ गई m0 L1 T0, एस दी डायमेंशन की सी, अरे तो सेम नहीं आ गई ना, यस और नो। सो अगे अगेन थर्ड टर्म भी देख लेने, आ हाफ है, कोई डायमेंशन नहीं होनी, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। सो अपने को आ जाऊगा डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, ए दी लिख ली, एल टी -2 होंगी है, वेलोसिटी बाय टाइम होंदा ना, सो वेलोसिटी एल टी -1 हो गया, थल्लों एक और टी आ जाऊगा बाय टी करके -2 हो गया। एक्सेलरेशन की डायमेंशन का डायमेंशनल फार्मूला भी तुम ड्राइव करके लिख के भेजना मैनू कागज पे, ठीक है।
सो एल टी माइनस 2 नाल टी स्क्वायर है, आ 2 आ माइनस 2 फिर कटे गए, 0 हो गया। सो m0 L1 T0 डन। आ फार्मूला देखो, आ देखो ते आ देखो, तिन्ने सेम है। नाउ वी हैव 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन and the dimension of each term is same. If this happen to be same, अगर ये same आ जाती है तो इहदा की मतलब बन गया, it means this equation is correct. अगर s दी वैल्यू, s दी जो dimension है, ut दी dimension ना आउंदी, इहदी dimension होर आ जाती, आपां दोबारा चेक कर दे, ना आउंदी, दोबारा मतलब 2 बार ट्राई कर लिया, कई बार पहली बार होंगे ना नहीं आई, दूजी बार कहने नहीं यार भी इक्वेशन लिखी तो हो, जो चेक किया भी नहीं आई, इट मीनस दिस इक्वेशन इज इनकरैक्ट। बट इस केस दे विच की अपने को इक्वेशन आ गई, इट मीनस दिस इक्वेशन इज करैक्ट। ठीक है, सो अपने को की आ गया, वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इक्वेशन इज करैक्ट। सो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया। मुड़ के तो आ 3 क्वेश्चन लिख दियाँ, तुसीं इत्थों ही अंदाजा ला लिया। बाकी जे आप पेपर च नंबर लेने होंगे, आप पूरा लिखते होंगे ना, सवाल पूरा पाने होंगे, हम पूरा सॉल्व करते हैं। सो आ नेक्स्ट स्टेप लिख लियो, एस दी डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी प्लस डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। सो इन डायमेंशन लिख के, हाँ सिंस वी आर सीइंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग दैट कुछ भी ऑन बोथ साइड्स फॉर ईच टर्म वी गेट द सेम डायमेंशन फार्मूला विच मीन्स द इक्वेशन इज करैक्ट। अपने लफ्जां च लिख दियो, ये नहीं सोहने लगते, अपने वर्ड्स च लिख दे, डजंट मैटर। ठीक है, तुहानूं सॉल्व करना आना चाहिए। सो इहदे नाल दियां प्रॉब्लम्स बुक चों सॉल्व करनी है। CBSE फॉलो कर रहे हैं है ना, NCERT दी बुक जे तुहाडे कोल हैगी है वेलकम, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, साइट ते पई है NCERT दी। जे नहीं तो मैं तुहानूं भेज दियांगा। उहदियां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नूं भी छेड़ो, उन्हां नूं भी ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, जो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करोगे यू विल गेट द थिंग्स, तुसी अपने आप नू, अपने माइंड दे लेवल नू एक लेवल ऊपर रेज कर लोगे। ठीक है, बच्चे डरते होंगे NCERT दी प्रॉब्लम्स तो, तुहानू डरन की लोड़ नहीं गी, हो जाऊगा, सब हो जाता। सो विच मीन्स इक्वेशन इज करैक्ट। नैक्सट चलिए आप नैक्सट मैथड ते, बोलो वाहिगुरू, एक मिनट। Okay, now conversion of one system of units into another। कोई एक सिस्टम है, ठीक है, उन्होंने आप कन्वर्ट कर रहे हैं अगले दे विच। ये थोड़ा पढ़ के करते हैं, ज़्यादा गल्लां नहीं, इत्थे रख लो। This is based on the fact that the magnitude of a physical quantity remains the same। भावें वो CGS सिस्टम च है, भावें SI सिस्टम च लिख रहे हैं, जो मर्जी यूनिट है, 1 किलोमीटर ने 1 किलोमीटर ही रहना। यह गल हैगी है भी जे आप SI यूनिट्स दे विच लिख रहे हैं तो 1 किलोमीटर का आप 1 km लिखते हैं। जे CGS च लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी SI दे विच लिख रहे हैं तो आप 1000 मीटर्स लिखते हैं, 1000 मीटर्स, क्योंकि मीटर होंदा ना SI च। सो जे आप CGS च लिख रहे हैं तो की लिखांगे 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, पर क्वांटिटी तो सेम है ना। सो मैं जोर ला के ना बोला, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। सो क्वांटिटी सेम रहिंदी है, इहदा मतलब की है, वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट, यूनिट का कोई भी सिस्टम हो, Q क्वांटिटी होगी, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हेयर U1 एंड U2 आर दी 2 यूनिट्स। ये अपने को यूनिट है वक्रे वक्रे, आ SI ला लो, आ CGS ला लो, कुछ भी आप सपोज करेंगे अगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो थर्ड है अपने को आ चीज़ नंबर नोट करना, N1 एंड N2 आर देयर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज। कुछ नहीं पता लगना हले इतों, जस्ट देखी चलो, हुण स्टार्ट होगा काम। लेट अस सपोज साडे कोल कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है,
फंडामेंटल यूनिट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ਦੇ पहले सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ दो सिस्टम ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ वन सिस्टम 1 ਤੇ सिस्टम 2 ਸਾਨੂੰ नहीं पता वन ਕਿਹੜਾ ਆ इट मे बी SI इट मे बी CGS MKS कुछ भी हो सकता ठीक है सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 फर्स्ट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ मास लेंथ टाइम ਦੇ ਜਿਹੜੇ यूनिट्स है these are M1 L1 T1 सेकंड सिस्टम च M2 L2 T2 ठीक है मान ले कहना हुण कोई क्वांटिटी है क्वांटिटी दे विच एम एल ते टी दियां पावर्स भी होणगियां जिन्हां नूं असीं बोलदे हुंदे आ एम दियां इन्नियां डायमेंशनस एल दियां इन्नियां डायमेंशनस टी दियां इन्नियां डायमेंशनस सो उस जगह दे उत्ते लेट मी हाँ सो एंड ABC आर दी डायमेंशनस ऑफ क्वांटिटीज इन मास लेंथ एंड टाइम रिस्पैक्टिवली मतलब की होगा जे आप डायमेंशन लिखांगे ना क्वांटिटी दियां M1 दी पावर A आ जूगी L1 दी पावर B आ जूगी T1 दी पावर C आ जूगी इदां ही M2 दी पावर भी A L2 दी पावर भी B ते T2 दी पावर भी C सो पावरां सेम ही रहणगियां पावरां थोड़ा चेंज होण लगियां सो नैक्सट स्लाइड ते चलिए हुण आपां सॉल्व करदे हां करना की है इहदे च सो वी कैन राइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट सिस्टम लिख लिया हुण आपां यूनिट लिखिया U1 कादे बराबर है आ लिख लिया आप सैकेंड सिस्टम च U2 लिख लिया मैं तुहानूं दस्सिया सी पावर से सेम रहणगियां बट आपां क्वांटिटी दी यूनिट लिख लिया हो गया जी हुण पिछे जिहड़ी इक्वेशन लिखी सी क्वांटिटी इज इक्वल टू क्योंकि क्वांटिटी दी वैल्यू तो चेंज नहीं होने लगी सो अपने कोल की आ गया N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 ठीक है हुण आपां ऐ मान लैंदे भी आपां नूं N1 दी वैल्यू पता मान लैंदे आ N2 दी वैल्यू आपां नूं नहीं पता सो असीं की कीता भी N2 नूं एक पासे रख लिया तो U2 नूं थल्ले घल दिता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे हुंदे ना इहनूं थल्ले लै गए सो N2 विल बी रिटन एज N1 U1 बाय U2 हुण इत्थे की कीता आपां इन्हां दी वैल्यूज़ फिल करतियां U1 ते U2 दियां आ इक्वेशन बन गई इत्थे U1 दी वैल्यू आ गई M1 दी पावर A L1 रेज टू B T1 रेज टू C उदां ही अपने कोल U2 दी वैल्यू आ गई M2 रेज टू पावर A L2 रेज टू पावर B T2 रेज टू पावर C ठीक है नाउ वी कैन राइट अगेन कुछ नहीं किया जस्ट रीअरेंजमेंट आ ना ब्रैकेट मैं सीधी पाई हुई है इत्थे तुसीं सीधे नहीं पाउणी यू विल पुट स्क्वायर ब्रैकेट आह वाली जी ऊपर ब्रैकेट पाई है दिस वन ठीक है सो की करोगे N1 इदां ही रह गया आ हुण पूरा फार्मूला सी हुण M1 M नूं अड कर लो L नूं अड कर लो T नूं अड करके लिख लो पावर सेम है ना सो आप की करांगे M1 बाय M2 रेज टू पावर A L1 बाय L2 रेज टू पावर B T1 बाय T2 रेज टू पावर C शायद समझ आ गया होवे की होगा अपने कोल आ तो न्यूमेरिकल नंबर है आ यूनिट भर जाएंगे हुण सपोज करो मेरे कोल मैं किलोग्राम नूं मीटर च ठीक है हरेक नूं किलोग्राम नूं ग्राम च मीटर नूं सेंटीमीटर ते सैकेंड तो सैकेंड ही रहिंदा सिस्टम SI तो CGS ही चेंज करना कुछ मैं की करूँगा दिता मैनू SI दिता होया ते मैं कढ़ना किहड़ा CGS कढ़ना मान लो तो मैं इत्थे की भर दूंगा एक मीटर एक मास सॉरी एक किलोग्राम लेंथ एक मीटर टाइम एक सेकेंड इत्थे की भर दूंगा एक सेंटीमीटर सॉरी ग्राम मास एक ग्राम लेंथ की हो जो एक सेंटीमीटर टाइम एक सेकेंड कट कटा के वैल्यू आ जूगी देखिए कितना समझ आया कुछ जे नहीं आया एक बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लो जे आ गया तो ठीक है जे नहीं आया प्लीज टेल मी कि सर सानू ये मेथड पता नहीं लग गया ठीक है आ जाओ भाई सो एग्जाम्पल दिती है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन बई न्यूटन ते डाइन ये फोर्स दे यूनिट्स ने न्यूटन जिहड़ा हुंदा आ ये अपने कोल यूनिट हुंदा आ SI यूनिट ते डाइन जिहड़ा हुंदा आ ये CGS यूनिट हुंदा
हुण इस प्रॉब्लम का मतलब की है, कहते कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। ਇਹਦਾ मतलब की है, 1 न्यूटन च किन्ने डाइन हुंदे आ, आपां ਇਹ वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। सो साडी टोटल प्रॉब्लम ये बन जाती। असी की करांगे, सानू पता फोर्स दे यूनिट है, जो फोर्स दे यूनिट है तो सानू ये पता लग गया ना डायमेंशनल फार्मूला किहड़ा चुकना, फोर्स का चुकना है। फोर्स की हुंदा है m इंटू ए दी पावर ए दा डायमेंशनल फार्मूला की हुंदा है LT माइनस 2, m का डायमेंशनल फार्मूला m, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला की हो गया MLT माइनस 2। आ लिखा पे F इज इक्वल टू MLT माइनस 2। ठीक है। सो हेयर ए दी वैल्यू 1 है, कन्वर्ट करके आप ऐ लिखे से ना, m दी पावर a, l दी पावर b, t दी पावर c। सो a दी पावर 1 है, b दी पावर 1 है, b दी वैल्यू भी 1 है, c दी वैल्यू अपने को कितनी बन गई -2। आ लिखा पे है तो देख लो। सो वी हैव SI सिस्टम 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितना हुंदा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सानू नहीं भी पता कोई गल नहीं, सानू इन्ना पता भी 1 न्यूटन SI यूनिट है फोर्स का। सो आप डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। डायमेंशनल फार्मूले कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यूज भरनी है। मास की वैल्यू 1 kg आ जाऊगी, L की वैल्यू 1 मीटर आ जाऊगी, T की वैल्यू जी है 1 सेकेंड आ जाऊ। SI यूनिट आप 1 पाया M1 L1 T1, इट मीनस फर्स्ट यूनिट सिस्टम। सो N1 की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन। हम आप डाइन च कन्वर्ट करना है, डाइन इज CGS। सो CGS सिस्टम च लिखांगे M2 की वैल्यू की हो जाएगी 1 ग्राम, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड आऊगी क्योंकि CGS सिस्टम है। ठीक है। थर्ड लेक्चर च आई थिंक डिस्कस कीतियां सी आपां चीज़ां। सो N2 इज इक्वल टू कितना है आपां फाइंड आउट करना, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। कन्वर्ट करके ही पता लगता हुंदा। सो आपां उस इक्वेशन नू यूज करना है जिहड़ा आपां आ वाली इक्वेशन सी। ठीक है। इहदे च वैल्यू फिल करनी है। पहला इक्वेशन ही दोबारा लिख ली, इत्थे मैं गलती सुधार ली सी, स्क्वायर ब्रैकेट पा ली सी। N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 A L1 L2 रेज़ टू B T1 T2 रेज़ टू C। वैल्यूज पर ये इधर आ जाओ, N1 की वैल्यू 1 आ जाऊगी, इत्थे भरी नहीं अगे भरी हुई है, किस फिक्र वाली गल नहीं। सो 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड भर लिया। हुण तुसीं इत्थे एक क्रूशल स्टैप हुंदा, आ तां गल्लां ही करी जन्ने आपां, इत्थे जिहड़ी रकम दित्ती है उहनूं आपां खलार के लिख लिया। आ चीज़ मेन है जिथे आपां करना, पहलां आपां फार्मूला लिखना, फार्मूले च वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करन तो बाद असीं उहनूं देखना। हुण देखो 1 किलोग्राम च किन्ने ग्राम हुंदे ने 1000। ठीक है, 1000। सो वी रॉट हेयर 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम। इत्थे आपां 1 मीटर च किन्ने सेंटीमीटर होंदे 100 है ना, 100 सेंटीमीटर। इत्थे असी एक चीज़ करनी है, होमोजनाइज करना, मीनस असी यूनिट इक्को यूनिट च ले आने ताकि आपां नूं पता लग जाए। मीनस मैं SI वालियां चीज़ां नूं सिंपली लिख लिया, ये तो आपां नूं पता हुंदा सेकंड तो सेकंड ही हुंदा, ये कट्टिया जाऊगा। सो ये कट्टिया जाऊगा, इहदा कोई वैल्यू दे रहा नहीं, यूनिट तो रहूगा विच। सो ग्राम नाल ग्राम कट्टिया गया, सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कट्टिया गया, सेकंड नाल सेकंड कट्टिया गया, कट्टे गए। रह की गया अपने को सिर्फ नंबर्स। जे नंबर्स रह गए अपने को 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100। सो हाउ मैनी नंबर्स आर दिस, एक दे पिछे 5 zeros, इट मीनस 10⁵, 1 लाख। ठीक है। सो N2 की वैल्यू अपने को की आ गई 10⁵। इट मीन्स कि 1 न्यूटन हैज 1 लाख ऑफ डाइन्स, जहाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। ठीक है, पता लग गया इस चीज़ का। हुण इहदे बेस दे उत्ते एक न्यूमेरिकल आ थल्ले लिखिया पिया, एक्सरसाइज की कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स।
ਇਹਦਾ मतलब की है तुसी इहनूं सॉल्व करना है। एक जूल दे विच किन्ने अर्ग्स हुंदे ने तुसी ये मैनूं दसना। एक जूल दे विच किन्ने अर्ग्स हुंदे ने ये दसना। जूल अगेन कर लैने आ। जूल ते अर्ग हिंट दे दिना है। जूल एंड अर्ग्स दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी दे यूनिट हुंदे आ। SI यूनिट जिहड़ा एनर्जी दा हुंदा है वो अपने कोल हुंदा है जूल्स, ठीक है। ते जिहड़ा CGS सिस्टम हुंदा है जिद्दां उत्थे डाइन सीगा उवें इत्थे CGS च अर्ग हुंदा। सो उस तो बाद एक होर हिंट ले लो, ठीक है। सॉल्व करके भेजना है चंगी तरह, इन्ने हिंट देन लगे हैं, सो गलती नहीं करनी। एक हिंट होर ले लो। एनर्जी, एनर्जी दे यूनिट है। एनर्जी की हुंदी है? वर्क डन वर्क दे बराबर हुंदी है। सो एनर्जी दियां डायमेंशनस किहड़ियां होणगियां? वर्क दियां डायमेंशनस होणगियां। सो वर्क की हुंदा है अपने कोल? फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो फोर्स इनटू डिस्टेंस है इट मीनस फोर्स दियां डायमेंशनस ते डिस्टेंस दियां डायमेंशनस नूं मल्टीप्लाई कर दांगे। कि डिस्टेंस की हुंदा है? L। डायमेंशनस लिखदे आपां डिस्टेंस दियां डायमेंशनस L। फोर्स दियां डायमेंशनस MLT-2, ठीक है। सो अपने कोल वर्क दियां डायमेंशनस की बन गईयां? M L दी पावर भी 2 बन गई, T दी पावर -2 रह गई, है ना। ML2T-2 ये बन गया एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। हुण वापस इस सवाल च देखो, डायमेंशनल फार्मूला तुहानूं पता है। डायमेंशनल फार्मूले तो A B ते C की वैल्यू पता लग जूगी। A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू मेरे को 2 आ जूगी एनर्जी वेले, C की वैल्यू -2 ही रहूगी, ठीक है। फार्मूले नूं देख के गल करनी है आपां दा। सो जदों आपां नूं ये पता लग गया तो आ सारा कुछ इहदा नवें सवाल दा कर लोगे, यस और नो? अच्छा कर लोगे। ये करके मैनू तुसी रफ कापी ते करके क्लिक करके पिक जिहड़ी आ WhatsApp करनी, ठीक है। सो अज आपां की कर लिया, इहदे विच आपां 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कीते ने। आपां एप्लीकेशनस स्टार्ट कीतियां सीगियां, एप्लीकेशनस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशनस। इहदे च असीं 2 पार्ट कर लए आ। सब तो पहला असीं सीख लिया कि सिस्टम दी कोई अपने कोल फार्मूला आ, उहदी करैक्टनेस जां एक्यूरेसी चैक करनी है भी वो फार्मूला करैक्ट हैगा कि नहीं हैगा। दूजी चीज़ असीं की सीखी है कि सिस्टम जदों कोई अपने कोल यूनिट कन्वर्ट करन नूं कहंदे आ तो डायमेंशनल फार्मूले नूं यूज़ करके, डायमेंशनल इक्वेशन यूज़ करके असीं एक सिस्टम तो दूजे सिस्टम च यूनिट किद्दां चेंज करने। सो अज दे लैक्चर ते इस च इन्ना ही करते हैं। नैक्सट लैक्चर जिहड़ा आ उहदे च आपां आ दोने डिस्कस करांगे, ठीक है। तुसीं मैनूं प्रॉब्लम्स जिहड़ियां आ सॉल्व करके दिखाउणियां आ जिहड़ियां मैं तुहानूं दित्तियां एक 2 दूजी गल अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स नूं बुक तो सॉल्व करन लई ट्राई करो। इन्हां दे नाल बेस्ड जिहड़े न्यूमेरिकल्स आ प्रॉब्लम्स नूं भी क्लिक करके भेज दो मैनूं फोटोज़ न्यूमेरिकल दियां। आई विल सॉल्व दैम। आई एम ट्राइंग कि मेरे कोल बोर्ड भी हैगा आ, मैं ट्राई कर रहा भी बोर्ड दे नाल तुहानूं लैक्चर देवां मैं, बट उस सम हाउ लाइट का कोई सिस्टम नहीं बन रहा। अदरवाइज मैं लाइव लैक्चर स्टार्ट करने का मेरा प्लान सीगा, बट वो सक्सैसफुल जा नहीं हो पा रहा। सो रिसोर्सिस की कई बार उदां दी घाट हो जाती है। ये है अजीब है कि आपां नूं जिहड़ा घरे बह के काम करना पै रहा। अदरवाइज जो लाइव क्लास हुंदी है वो लाइव क्लास ही हुंदी है। रही गल बच्चे मैनूं वार वार ये पुछदे आ भी सर असीं नोट्स ते की लिखीए, है ना, जो आपां नोट्स बनाउने। बेटा मेरी गल सुनो, नोट्स का मतलब ये हुंदा आ भी जो तुहानूं क्लास च कराया जांदा। दूजी गल इत्थे जिद्दां स्कूल्स दे विच हुंदा भी आपां एक कॉपी बनाउने आ, है ना, फेयर कॉपी हुंदी है, घर दा काम करन नूं दित्ती जांदी है। वो कॉपी तुहाडा टीचर चैक करदा, वो कॉपी चैक करदा टीचर भी हाँ क्वेश्चन सही लिखिया सही लिखिया। सो जदों आपां हायर क्लासिस च जाने आ ये गल्लां थोड़ियां थोड़ियां फिजिबल नहीं हो पाउंदियां, ठीक है। सो नोटबुक्स बनाओ अपनियां, नोट्स बनाओ अपने, वो इस हिसाब नाल बनाओ कि तुसी अपना प्रिपेयर करो, ठीक है। तुसी किद्दां प्रिपेयर कर सकदे हो।
मैं तुहाडे टैसट लऊँगा, मैं तुहाडे टैसटां तो तुहानूं जज करूँगा भी हाँ तुसीं की लिखदे हो। आ यूनिट कंप्लीट होने तो बाद आ डायमैंशनल तो बाद 2 लैक्चर 1-2 लैक्चर का काम हैगा जिहड़ा अपना एरर एनालिसिस वाला चैप्टर है, ठीक है, ਉਹਦਾ भी मैं प्रेजेंटेशन बनाउण लगा होया। सो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ चैप्टर खत्म ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ अपना फस्ट यूनिट ਜਿਹੜਾ कंप्लीट हो जाना। NCERT बुक के 2 चैप्टर खत्म हो जाने हैं। अगर तुसी मॉडर्न प्रदीप ਜਾਂ ਹੋਰ किताबां फॉलो कर रहे हो ਉਹਨਾਂ 'ਚ नॉर्मली ये 5 चैप्टर बना ਦਾ एक यूनिट ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ कंप्लीट हो जाने। सो इंपॉर्टेंट मैं नाल नाल तुहानूं दस्सिया भी की हैगा आ। सो इन्हां चीज़ां दा आपां टैसट भी जिहड़ा कंडक्ट करांगे ते जो मैं लैक्चर च बोल रहा हुन्ना है है मोस्टली जो मैं इत्थे प्रेजेंटेशन च लिखिया वो हर एक चीज़ नोट करने वाली हुंदी है, नोट्स से लिखण वाली हुंदी है। प्लस कई चीज़ां मैं वध मूँह चों बोलदा, ठीक है, जिद्दां कोई चीज़ जिहड़ी आ बुक ते भी लिखी हुंदी है वो भी तुसीं पढ़नी है, जिहड़ी भी रैफरेंस बुक तुहाडे कोल हैगी आ, आई थिंक मॉडर्न होएगी। सो ਉਹਦੇ तो भी पढ़ियो ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां मैं बोलदा है तुहानूं लगदियां भी इंपॉर्टेंट आ वो लिखनी है, ते जिहड़ी चीज़ नूं मैं कहदा भी ये इंपॉर्टेंट या नोट कर लो गल वो लिखनी ही लिखनी। सो इदां ही थोड़ा जिहा लिमिटेशन है लाइव क्लास दे नालों अपने कॉलेज दे विच आपां क्लास लाउने आ उहदे नालों, ठीक है, लिमिटेशन हैगी ऑनलाइन दी, बट आपां इस चीज़ नूं सीखना है चंगी तरह। सो सब तो पहलां अपनी सेहतां दा ख्याल रखो, ठीक है, ते गले बचा के रखो। अब 3-4 दिन मेरा गला बहुत ख़राब रहा है, मेरे तो बोल भी नहीं सी हो रहा। सो कल दा दवाइयां खाण लगा है, अज मेरे तो बोल हो पा रहा, गला इदां खराब सीगा भी प्रॉब्लम हो गई सी भी वोकल कोड ते कोई जख्म बन जाता। सो अपना बचा रखो, डाइट उदां दी रखो, डॉक्टर भी जिहड़े आ ओह अटेंड नहीं करते, ठीक है। सो सेहतां दा ख्याल रखो, मेन जरूरी है। बाकी हौसला नहीं छड्डना हुंदा, काम चंगी तरह करो, पढ़ो। नैक्सट लैक्चर मैं रिकॉर्ड करके भेजदा तुहानूं, ठीक है। ओके बेटा, बाय।